Research Assistant of Sarvodaya The Rise Foundation. I welcome you all to the third webinar of our project Sarvaro. We are honored to have Dr. Pratibha Sharma ma'am as our expert for today. Please keep your microphone muted for discipline and keep your question ready to be asked to the expert. Now I request Sneha ma'am, Editorial Director of Sarvodaya The Rise Foundation, to welcome our expert and provide the program over to you. So, good evening, everyone. I am delighted to welcome you all to the third webinar of Sarvarogya. Also, I would like to extend my sincere gratitude to Prasad Institute of Medical Sciences, Lucknow, for supporting this initiative. First of all, on behalf of the entire DRISE family, I welcome Dr. Pratibha Sharma, who is a renowned clinical psychologist. We are truly honored to have you, ma'am, with us today to share your insights on navigating the modern mental health crisis, emerging challenges, and public health responses. But before Dr. Pratibha expresses her thought, let's set the context right. Why this Sarvarogya webinar? So, mental health, a crisis where millions suffer in silence, a suffering which cannot be seen, a suffering which is hard to comprehend, not just for the people around, but for the patient himself. Now, just imagine a situation. Consider the life of Ram. He's a young boy, say in his late 20s. Every morning, he wakes up exhausted. No fever, no stomach ache, no cough. Yet he feels that something is wrong. He goes to the nearby clinic, but he still gets no answers to his problem. Just imagine how confusing the situation is. Everything seems physically right, but mentally wrong. Now imagine that Ram is not alone. Imagine that every 10th person in his village is facing a similar struggle with no one to help around nor any idea with respect to the what kind of treatment do they need. Can they afford the treatment? Who should they consult? Whether they should go to a psychiatrist, a clinical psychologist, a counselor, a psychotherapist, a neurologist, or a mental health social worker. And even if they find help, does the health insurance covers it? See, this is not a hypothetical scenario. This is the reality of the mental health in India. Across the country, a mental health crisis is growing. National estimates suggest that nearly 1 in 10 Indians experience a clinically diagnosable mental disorder. Yet almost 83% of those who need the care never receive any treatment. For millions of Indians, mental health remains geographically distant, financially inaccessible, and socially unacceptable. In this vacuum, more and more people are turning towards AI chatbots. The result, when unmonitored and unregulated, is very dangerous. See, artificial intelligence can act as a bridge to support, to provide information, to provide guidance, but it cannot replace the depth of the human empathy. A criteria, believe me, is a must in mental health treatment. India stands at a critical juncture. We can either allow millions to continue navigating the psychological distress alone, relying on this fragmented and inadequate support system, or we can build a future where mental health is treated with the same urgency, with the same investment and dignity as the physical health. And this is precisely the main discussion we aim to start through this webinar. Shivam, over to you. Shivam? Yes, ma'am. Okay, ma'am. Now I would like to request Sneha ma'am to share the brief profile of our chief guest. Over to you. Uh, Dr. Pratibha Sharma is a clinical psychologist with over 2 decades of experience in mental health, psychotherapy, rehabilitation, and psychological assessment. She is presently the founder of Doon Psychotherapeutic Center. Beyond clinical practice, ma'am is also actively involved in education and research,
having served as the head of the Department of Psychology at NIE PVD. Ma'am is also actively involved in social work, having established Vasundhara Manav Kalyan Sanstha, a non-profit organization dedicated to mental health awareness, rehabilitation, and disability support. Additionally, for her contributions to mental health and advocacy, she has received several recognition, including the Helen Keller Fellowship from the Ministry of Social Justice and Empowerment, and an honorary award from the Chief Minister of Uttarakhand. Further, she is empaneled with the Uttarakhand Police, ONGC Hospital, UPES, and several educational institutions to provide mental health consultations and awareness program. It's truly an honor to host you, ma'am, today. Over to you, ma'am. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू शिवम, थैंक यू स्नेहा। जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो हम मेंटल इलनेस हमारे थॉट में आता है। लोग सोचते हैं कि मेंटल हेल्थ टर्म जब यूज करते हैं तो लोग सोचते हैं अच्छा मेंटल इलनेस का, जबकि पहले मेंटल हेल्थ टर्म वाज यूज फॉर मेंटल इलनेस, लेकिन अभी मेंटल हेल्थ क्योंकि ये विजिबल नहीं है, आपकी फिजिकल हेल्थ विजिबल है तो आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, आप ट्रीटमेंट लेते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ की तो आप केयर नहीं करते। तो मेंटल हेल्थ जो कहा गया है, द स्टेट ऑफ इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेलबींग, means it represents the capacity to think, to feel, and to behave and relate to others in way that enhance our ability and enjoy life and navigate daily challenges. ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि मेंटल हेल्थ को हम साइकोलॉजिस्ट 3 पिलर पे मानते हैं कि एग्जिस्ट करती है मेंटल हेल्थ। फर्स्ट, इमोशनल वेलबींग। इमोशनल वेलबींग मीन्स एबिलिटी टू मैनेज एंड रेगुलेट योर इमोशंस, experience a sense of peace, and bounce back for adversity. Second pillar is psychological functioning. It means that capacity of personal growth and ability to realize our own potential. The third is social well-being. Social well-being means how we connect with others, our sense of belongingness within in a community, or ability to fulfill social roles and responsibility. तो साइकोलॉजी की डेफिनेशन में आप ये कह सकते हैं कि मेंटल हेल्थ 3 पिलर्स पे डिपेंड करती है। आजकल ये देखने को आ रहा है कि बहुत फ्रॉम द इन्फेंसी, मतलब 3 साल से ऊपर के बच्चों का मैं बोलूंगी जो मैं रोज देखती हूँ, फ्रॉम इन्फेंसी टू एज ऑफ 83 ईयर्स बहुत लोगों को मेंटल हेल्थ क्राइसिस आ रहे हैं, क्योंकि मॉडर्न सोसाइटी इतनी ज्यादा फेस कर रही है स्ट्रेस से, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस से, डिप्रेशन से, ड्रग अब्यूज से, मोबाइल से, गेमिंग एडिक्शन से, ब्रेकअप से, बिलोंगिंगनेस से, सेल्फ हार्म से और सुसाइड से। तो जो इन्फेंसी से मैंने कहा था कि जो मॉडर्न मदर्स है, हम तो मॉडर्न सिनेरियो की बात करते हैं, हम मॉडर्न मदर्स की बात से शुरू करते हैं। जो मॉडर्न मदर्स हैं, मैंने मदर्स डे पे देखा था एक रेस्टोरेंट में जाके कि मॉडर्न मदर्स सेलिब्रेट करी थी मदर्स डे। सब किड्स के हाथ में था आईपैड, लैपटॉप, फोन, आईफोन, ये सब थे। तो सारे गैजेट्स बच्चे देख रहे थे और माँ अपना पार्टी ड्रिंक डांस करी थी। तो आप यहाँ से देखो ना, पेरेंटिंग का इम्पैक्ट वहां से शुरू हो जाता है कि मेंटल हेल्थ क्राइसिस बचपन से स्टार्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये कहते हैं कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, वो एडिक्शन तो मोबाइल का होगा, उसे गेमिंग का होगा, और बड़ा होगा तो ये इंस्टाग्राम और जितने भी आपके ऐप हैं उसका होगा, फिर और बड़ा होगा ड्रग्स का होगा, फिर ब्रेकअप्स का होगा, फिर जो जॉब प्रोफाइल जो आपके वर्क प्लेस है वहां पे होगा, फिर मैरिड लाइफ का होगा। तो अब सोचो ये स्ट्रेस बचपन से स्टार्ट हो रहा है। तो स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस एक सेल्फ क्रिएटेड इलनेस है। हम कहते हैं ना उसने हमें स्ट्रेस दिया, कोई हमें स्ट्रेस नहीं देता, ये हमारा सेल्फ क्रिएटेड एक मेंटल इलनेस है। इट कम्स थ्रू इंटेंस इमोशंस। स्ट्रेस इज नॉट योर बॉडी वे ऑफ, इट इज नॉट योर बॉडी पार्ट, ये आपकी बॉडी का पार्ट नहीं है, इसलिए आपको इसको हैंडल करना नहीं आता। ये तो आप स्ट्रेस तो आप ले लेते हैं ना, मतलब एक आपका रिस्पॉन्ड है, कोई भी काइंड का कोई डिमांड हो या थ्रेट हो तो आप स्ट्रेस खुद से ले लेते हो, कोई देता नहीं आपको स्ट्रेस। तो व्हेन यू आर इन डेंजर तो आपका ऑटोमेटिक रिएक्शन क्या होगा कि या तो आप फाइट करोगे या फ्लाइट करोगे, या तो आप भाग जाओगे, आपको लगेगा अरे मैं क्या कर सकता हूँ। तो स्ट्रेस की अगर हम बात करते हैं तो स्ट्रेस डिस्ट्रेस भी हो सकता है और यू स्ट्रेस भी हो सकता है। यू स्ट्रेस जो है वो पॉजिटिव स्ट्रेस में लेते हैं। तो स्ट्रेस अगर
देखो आज के लोग बहुत स्ट्रेस के बाद एंजाइटी, डिप्रेशन, मैं और सारे पॉइंट्स बताऊंगी कि कहाँ जो हमारा मॉडर्न ये एरा है, जो हम बहुत ज्यादा डिजिटाइजेशन और बहुत प्रोग्रेस, एआई बहुत प्रोग्रेस करते जा रहे हैं, तो वहीं पे हमारा मेंटल हेल्थ खराब होती जा रही है। तो अगर आपका स्ट्रेस एक्यूट है तो आपको एंगर होगा, आपको एग्रेशन होगा, आपको इरिटेबिलिटी होगी। अगर आपका स्ट्रेस, एक्यूट स्ट्रेस को आपने रिजॉल्व नहीं किया, आप उसे झेलते जा रहे हैं, तो क्या ये स्ट्रेस आपका क्रॉनिक बन जाएगा? अब क्रॉनिक स्ट्रेस हो गया, अब क्या होगा? अब तो वही होगा, हार्ट डिजीज होगी, इंसोम्निया होगा, ओबेसिटी होगी और एंजाइटी होगी। अब एंजाइटी क्या चीज है? एंजाइटी एक मेडिकल कंडीशन है दैट अफेक्ट्स अ पर्सन मूड, थॉट्स एंड बिहेवियर एंड बॉडी। सारे सिम्टम्स आपको एंजाइटी में दिखते हैं। तो यहाँ ये समझने की भी जरूरत है कि एंजाइटी और फोबिया बहुत दोनों डिफरेंस है। एंजाइटी जनरली एक अननोन डेंजर है जो कि इंटरनल है। आप फ्यूचर का सोचोगे आपको एंजाइटी होगी, आप पास्ट का सोचोगे आपको डिप्रेशन होगा। तो एंजाइटी एक अननोन इंटरनल स्टिमुलाई है, लेकिन फोबिया एक एक्सटर्नल डेंजर है जो आपको दिखाई दे रहा है। अब एंजाइटी होती क्यों है, स्ट्रेस क्यों होता है, इसके कंट्रीब्यूटर क्या है? तो देखो, एंजाइटी में आप सोशल, आज की हम बात करें तो आप एक सोशल एंजाइटी भी ले लो, जो आप सभी जो लोग सुन रहे हो उनमें भी लोगों को फोमो होगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो फोमो क्यों हो रहा है आजकल? क्योंकि कॉन्स्टेंटली आप कंपेयर कर रहे हो खुद को अपने पीयर से, आपकी जो नीड है, सोशल कनेक्शन है, अनफुलफिल्ड है। तो आपको क्या जरूरत है? आपको एक जरूरत है एक बिलोंगिंगनेस की, तो वो तो है नहीं। तो आपके ब्रेन में क्या थ्रेट है? अरे मुझे सब लोग रिजेक्ट कर देंगे, मुझे कोई फॉलो नहीं कर रहा इंस्टाग्राम पे या जो भी और होते हैं, स्नैपचैट, मुझे इतना आइडिया नहीं है। तो एक अगर कोई भी पर्सन डिसकनेक्टेड फील करता है या अनसेटिस्फाई फील करता है ऑफलाइन, रियल वर्ल्ड में, तो वो उनको क्या होती है, कंपल्सिव स्क्रोलिंग, जो हम स्क्रोल करते रहते हैं उसकी आदत पड़ जाती है। तो एक कंपैरिजन के ट्रैप में फंस जाता है। तो स्ट्रेस, एंजाइटी, इनके कॉजेस क्या है? इनके कॉजेस ब्रेन केमिस्ट्री हो सकता है, आपकी पर्सनालिटी पैटर्न हो सकता है, पर्सनालिटी स्टाइल हो सकता है, आपका हेरिडिटरी हो सकता है जिसे आप जेनेटिक कहते हैं। आप सब्सटेंस यूज करोगे, ज्यादा हो जाएगा तो आपको अगेन कोमा में चले जाओगे या स्ट्रेस में आ जाओगे। आप ये कह सकते हो कि आजकल के जो एडल्ट हैं, जो मैं देख रही हूँ रोज प्रैक्टिस में, और जो एडोलसेंट हैं, उनको इतना स्ट्रेस एक क्रॉनिक हो जाता है, एक्यूट हो जाता है कि उनको पैनिक अटैक आ जाता है। अब पैनिक अटैक को वो क्या सोचते हैं, हार्ट अटैक। जाते हैं वो अपना चेकअप कराते हैं कि मुझे हार्ट अटैक आया, माइल्ड हार्ट अटैक, लेकिन होता क्या है, वो होता है पैनिक अटैक, जिसका मैक्सिमम पीक 8 मिनट होता है। अगर आपको ये फाइंड आउट करना है कि वो हार्ट अटैक तो नहीं है, पैनिक अटैक तो नहीं है, तो आपको 8 मिनट वेट करना है, धीरे 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 डाउन होगा। तो आजकल का जो लोग हैं, जो हमारी कम्युनिटी है, उसमें जितने लोग हैं, उनको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। अब डिप्रेशन क्या चीज है? हम कहते हैं ना, इसमें देख लेते हैं बच्चे फोन में, मैं बहुत डिप्रेस हूँ। अरे उनको डिप्रेस का मतलब तो पता नहीं, देख लेते हैं, वो अपने आप टर्म बताते हैं, मैडम मुझे बाइपोलर डिसऑर्डर है, मुझे स्कीजॉइड हूँ मैं, और स्कीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर है, तो वो बताते रहते हैं। खुद से देख लेते हैं इंटरनेट पे, ये भी तो एक समस्या है। तो डिप्रेशन क्या है? एक स्टेट ऑफ लो मूड है और एवर्जन टू डू एनी एक्टिविटी। तो इस डिप्रेशन इंक्लूड फीलिंग ऑफ लोनलीनेस, फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस, एंजाइटी, एक एम्प्टीनेस, एक होपलेसनेस, लगता है कुछ भी नहीं होगा, एक गिल्ट, एक रेस्टलेसनेस। ये डिप्रेशन है जो कि हम देख रहे हैं आजकल बहुत सारे लोग डिप्रेशन में परेशान है। सब्सटेंस अब्यूज भी है डिप्रेशन में। ब्रेकअप हो गया, चलो सुल्फा पी लेते हैं, वीड पी लेते हैं, वेप ले लेते हैं। तो ये मैं सुनती रहती हूँ बच्चों से। इसके बाद जो हमारी सोसाइटी फेस कर रही है वो लोनलीनेस है, सोशल आइसोलेशन। अब सोशल आइसोलेशन कैसे हो गया? क्योंकि हमारी फैमिली जॉइंट फैमिली तो है नहीं, न्यूक्लियर फैमिलीज है हमारी। न्यूक्लियर फैमिली में भी हो सकता है सेपरेटेड हो, सिंगल पेरेंटिंग हो, ये फैमिली का पैटर्न हो गया है। तो एक वो भी एक वजह है लोनलीनेस का। और सोशल आइसोलेशन तो हम जितना सोशल मीडिया पे रहेंगे, एक्सेस में रहेंगे या डिजिटल टेक्नोलॉजी में रहेंगे, उतना ज्यादा हम इनर वर्ल्ड हमारा लोनली है। हमें लगता है जो जेंजीज हैं, मैं जेंजीज की बात करती हूँ, 73% जो जेंजीज हैं, वो उसमें ऑलमोस्ट सभी लोग, 73% लोग ज्यादातर फील करते हैं कि डिस्कनेक्टेड हूँ सोसाइटी से मैडम,
मेरे पास तो कोई भी नहीं, मेरा तो ब्रेकअप भी हो गया, मेरे पास कोई भी नहीं है, मैं किससे कनेक्ट करूं, मैं किससे बात करूं, तो मुझे एक अकेलापन महसूस होता है। और जो ये वर्चुअल वर्ल्ड में रहते हैं तो ये एक इल्यूजन ऑफ कनेक्शन है, रियल कनेक्शन तो है नहीं, क्योंकि सोशल तो रहे नहीं अब लोग, गेस्ट आते नहीं, कहीं जाते नहीं, पूरे टाइम मोबाइल रहता है, गेस्ट घर में आ जाते हैं तो चिल्लाते हैं, क्यों बुला लिया मम्मा आपने गेस्ट को, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि उन्हें तो स्क्रॉल करना है। तो एक ये जो फेक वर्ल्ड, एक जो वर्चुअल वर्ल्ड बनाया हुआ है उन्होंने, जिसमें कहीं भी सोशल लेवल पे आना जाना नहीं है, कोई इंटरेक्शन नहीं है, फ्रेंड्स नहीं है, तो लोनलीनेस तो लगेगी लगेगी, क्योंकि पूरे टाइम आप अलोन रहते हो। उसके अलावा जो जेंजीज हैं और जो यंग एडल्ट है, उनको वर्क प्रेशर भी तो है, आईटी सेक्टर में या जॉब में वर्क प्रेशर है। क्यों है? एक तो बॉस बहुत काम देते हैं, एक वर्किंग आवर्स इतने ज्यादा है, बीच में टाइम नहीं है, और फिर टारगेट है, इतना टारगेट आपको पूरा करना है। उसके अलावा एक एआई आ गया है, वो सारे जॉब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। तो इन सब के चलते क्या बढ़ रहा है कि एडिक्शन बढ़ रहा है। किस तरह का एडिक्शन बढ़ रहा है? ड्रग एडिक्शन बढ़ रहा है, गेमिंग एडिक्शन बढ़ रहा है, बच्चे खेलते हैं। अब गेमिंग एडिक्शन से क्या हो रहा है? हम लोग सीख रहे हैं एग्रेशन, एंगर, बदला, रिवेंज वाला एटीट्यूड। तो ये सब चीजें हम गेमिंग एडिक्शन से सीख रहे हैं। ड्रग एडिक्शन तो आपको पता ही है, आजकल सारे देहरादून की मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में मैं रोज ही देखती हूँ ड्रग वाले बच्चे। तो जो बहुत कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल एक एक सिस्टमिक प्रेशर बन रहा है, तो उसकी वजह से हम लोग, हमारे जो पॉपुलेशन है, जो हमारी यंग से लेके एडोलेसेंट, उन सबका क्या हो रहा है? इमोशनल डिस्ट्रेस में आ गया। तो ग्लोबल ट्रेंड को अगर आप देखें तो 17% ग्लोबल, सबको देख के आप बताएं कि जो हमारा एडल्ट, यंग एडल्ट है, वो 17% सेल्फ हार्म की तरफ इंक्लाइंड है। उसकी वजह क्या है? डिजिटल ट्रैप है, साइबर बुलिंग भी हो सकता है, और एक जो एकेडमिक और फाइनेंशियल एंजाइटी है, सीवियर, जो मॉडर्न परफॉर्मेंस है ना, कि आपको प्रेशर होता है इतने परसेंट लाने हैं, इतना करना है, या तो हाई परफेक्शन, बिल्कुल परफेक्शन जो हाई है, या फिर परफॉर्मेंस उतना नहीं है, मतलब लेवल ऑफ अचीवमेंट कम है बट लेवल ऑफ एस्पिरेशन बहुत हाई है। तो दोनों में जब गैप आ जाता है लेवल ऑफ अचीवमेंट और एस्पिरेशन में, तो आपको प्रेशर तो फील होगा ही होगा। या आपको हो सकता है जेनेटिक, आपको कोई साइकोलॉजिकल क्राइसिस हो, या साइकोलॉजिकल आपको डिसऑर्डर्स हो, मेंटल इलनेस हो। तो कोमॉर्बिडिटीज अगर हैं और क्लिनिकल कोमॉर्बिडिटीज है लेकिन अनट्रीटेड है, जैसे आपको मूड डिसऑर्डर है, बाइपोलर डिसऑर्डर है ना, या डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ईटिंग डिसऑर्डर है, या बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, अगर ये अनट्रीटेड है तो क्या होगा? सुसाइड होगा, सेल्फ हार्म होगा, है ना। तो आजकल का जो यूथ है वो पीयर प्रेशर से हेविली इन्फ्लुएंस है, उसकी वजह से वो सेल्फ हार्म करता है। सेल्फ हार्म क्या, होमिसाइड भी करते हैं लोग, सुसाइड भी करते हैं लोग, तो कुछ भी करने के लिए आजकल तैयार हो जाते हैं। अब क्या है कि ये सब तो हमारे कल्चर में चल रहा है, अब हमें करना क्या है? हमें ऐसे कुछ स्ट्रैटेजीज डेवलप करनी है जिससे हमारी सोसाइटी और हमारी यंग जेंजीज, अल्फा भी ले लो, अब तो आप अल्फा जेंजीज, ये सब बच सके। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हमें उनकी सोशल इमोशनल लाइफ की तरफ ध्यान देना है, उनके अंदर वो स्किल्स डेवलप करनी है। उसके अलावा आप इंटरवेंशंस क्या दे सकते हैं इन सबको प्रिवेंट करने के लिए? हम मीडिया में एक रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। एक जो स्टिग्मा है ना, साइकोलॉजिस्ट के पास क्यों जाऊं मैं, साइकियाट्रिस्ट के पास क्यों जाऊं, मैं कोई पागल हूं? तो एक स्टिग्मा, अब तो हालांकि बहुत ज्यादा अवेयरनेस है आजकल, लेकिन जो एक स्टिग्मा है ना, अप्रोच करने का काउंसलर को, साइकोलॉजिस्ट को और साइकियाट्रिस्ट को, तो वो जो एक स्टिग्मा है उसको हमें अवॉइड करना है। कैसे करेंगे? हम पेरेंट की एजुकेशन से करेंगे, हम अवेयरनेस कैंपेन से करेंगे। उसके अलावा हम जब हमारे जो छोटे बच्चे हैं, जो किड्स हैं, जो प्री स्कूलर हैं, हमें वहां से स्क्रीनिंग स्टार्ट करनी होगी मेंटल हेल्थ की। फिजिकल हेल्थ के लिए तो आता है आई चेकअप के लिए ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आते हैं, पर हम ये ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि हमें उस टाइम से, क्योंकि कुछ जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन भी होते हैं। हो सकता है हमारी फैमिली में किसी को कोई डिसऑर्डर है, तो हमारे बचपन से हमें डिसऑर्डर, कोई ओडीडी हो सकता है, हमें किसी तरह का भी डिसऑर्डर हो सकता है जो आगे जाके हमारी पर्सनालिटी डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो सकता है। तो कंडक्ट डिसऑर्डर हो सकता है जो आगे जाके एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, फिर आगे जाके वो रेप मर्डरिस्ट बनते हैं। तो हमें स्क्रीनिंग उनकी करनी रेगुलरली जरूरी है एट प्री स्कूल टाइम से, वहां से।
उसके बाद मेंटल हेल्थ के कैंप्स लगाना जरूरी है, पेरेंटिंग वर्कशॉप जरूरी है, स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी और आपका वर्क प्लेस सब जगह लगाना बहुत जरूरी है। हमें सोशल ग्रुप्स का फॉर्म करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे बच्चे तो पूरे दिन स्क्रोलिंग करते हैं, कहीं आते जाते नहीं है, स्कूल भी नहीं जाते, स्कूल एंजाइटी भी उनको हो रही है। तो क्या है कि उनको एक अकेलापन, एक लोनलीनेस है, जिसकी वजह से वो या तो वेप लेते हैं या अपने दोस्तों से कहते हैं यार मैं क्या करूं, वो कहते हैं चल यार सुल्फा गांजा ले ले। तो ये जो हमारे बच्चे जो डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, जो बच्चे हमारे डीरेल हो रहे हैं, उनके लिए हमें बहुत जरूरी है उनको सोशल ग्रुप्स में डालना, उनका मोबाइल गेम का मिनिमाइज करना, स्क्रीन टाइम को मिनिमाइज करना और किसी तरह इंस्टाग्राम को कंट्रोल करना। उसके अलावा जो रिलेशनशिप होती है ना, क्या होता है सिचुएशनशिप, बहुत सारी शिप्स हैं, मुझे याद नहीं है, बच्चे बताते हैं। तो जितनी भी है शिप्स के बीच में ये है ना, कभी पानी में शिप, कभी पानी के ऊपर, तो जितनी भी ये रिलेशनशिप है या नैनो शिप, जितनी भी ये शिप्स हैं, तो जिनकी वजह से रिलेशनशिप ब्रेकअप हो रही है, आप मेंटेन नहीं कर पा रहे, आपको पता नहीं है कि किस तरह से बात करनी है, आप ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो वहां पे हमें उस तरह की वर्कशॉप या कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग पे काम करना चाहिए टू स्टॉप टू स्टॉप द फ्रैक्शंस इन रिलेशंस। ये बहुत जरूरी है। ये तो मैं रोज देखती हूँ, वो बच्चे आते हैं, मैडम वो गर्लफ्रेंड बहुत खराब निकल गई, वो किसी और को भी टाइम दे रही थी, कोई कहता है मेरा बॉयफ्रेंड बहुत खराब है, उसने कितनी सारी गर्लफ्रेंड बना रखी है। तो मतलब ये जो रिलेशन, अब बच्चों की तो पेरेंट्स से भी रिलेशनशिप अच्छी नहीं रह गई, तो रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए भी हमें वर्कशॉप्स और छोटे छोटे प्रोग्राम्स करने बहुत जरूरी हैं। ड्रग्स से, अल्कोहल से और मोबाइल से, गेमिंग एडिक्शन से बचाने के लिए हमें अपने यूथ को आउटडोर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना जरूरी है। आप जितना बोलोगे कि ऐसा मत करो, वो करेगा। आपको बोलना ही नहीं है कि स्क्रीन टाइम मत करो, आपको ये कहना होगा कि चलो आओ हम कुछ खेलते हैं। रेजिलियंस का प्रमोशन करना चाहिए, एम्पैथी डेवलप करो, एम्पैथी तो है ही नहीं। पर हम एवरी स्कूल, एवरी कॉलेज, एवरी ऑफिस में हमें एक काउंसलर रखना बहुत जरूरी है। और उसके अलावा हम तो क्या ही कर सकते हैं, जब तक हमें गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिलेगा, हमें मीडिया का सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो हम तो बहुत कुछ चीजें नहीं कर पाएंगे ना। तो हमें उनकी हेल्प लेनी बहुत जरूरी है और उसके अलावा हमें अर्ली इंटरवेंशन करना बहुत जरूरी है। जितना जल्दी हम चीजों को समझेंगे, होता है ना, जितना प्रिवेंशन इज द क्योर कहते हैं ना, तो जितना जल्दी हम चीजों को समझेंगे, उतना जल्दी मुझे लगता है कि हमारा यूथ, हमारे एडोलसेंट, हमारे एल्फा, हमारे एडल्ट, ये सभी लोगों को हम एक मेंटल हेल्थ प्रोवाइड कर सकते हैं, इनको एक मेंटल इल होने से बचा सकते हैं। तो ये मैं ओवरऑल कहना चाहूंगी कि इसीलिए जो मैंने भी, हालांकि इस एज में मुझे तो इतना आता नहीं है इंस्टाग्राम वगैरह, पर तुम्ही यंग जनरेशन जो यहाँ के कॉलेज के स्टूडेंट थे, उन्होंने मुझे बताया, आइडिया दिया कि मैडम आप ना इंस्टाग्राम पे मेंटल हेल्थ के रील्स डालो, क्योंकि बच्चों में तो अब पहले रील्स 40 सेकंड्स की होती थी, फिर 30 सेकंड्स की हुई या 15 सेकंड, क्योंकि हमारा जो फोकस है ना वो कम होता जा रहा है, हमारी मेमोरी कम होती जा रही है, हमारा फोकस, हमारा अटेंशन, हमारा कंसंट्रेशन सब कम होता जा रहा है। तो अब रील भी नहीं बच्चे देख पा रहे हैं, कैसे देखेंगे, क्योंकि उन पे तो इतना अटेंशन रहा ही नहीं। तो मैंने भी बनाई है, आप देख सकते हो जाके डून साइकोथेरेपेटिक सेंटर में, डून डॉट साइको में देख सकते हैं। तो वो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, या मेरे जो एडोलसेंट बच्चे हैं, जो मेरे अल्फा जनरेशन है, उनको क्या दिक्कत आ रही है और उसका क्या इंटरवेंशन स्ट्रैटेजी होगी, इसके लिए मैंने तो शुरू कर दिया अवेयरनेस कैंपेन, अवेयरनेस प्रोग्राम, अवेयरनेस के लिए। लेकिन मेरी सुनने वाले जितने भी हमारे अवेलेबल अभी मौजूद हैं, जितने भी लोग, उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि अकेले नहीं हो पाएगा, आप सब लोग मिलके हमारी इस जनरेशन को अगर बचा सकते हैं तो प्लीज एफर्ट्स करने स्टार्ट कर दीजिए। अब आप लोगों के लिए ओपन क्वेश्चन है, अगर आप कोई भी मेंटल इलनेस, मेंटल हेल्थ, आप कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह का आपको करना है तो मैं आपको आंसर दूंगी। Yes, any questions? Rohan? Any questions? Please go ahead. बेटा आप सबको भी तो प्रॉब्लम है ना मेंटल हेल्थ की, तो अपनी अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लो।
Good evening, ma'am. Thank you for such a wonderful session, ma'am. Question regarding adult ADHD. Actually, one of my friends has been diagnosed with it, and she's suffering from it since her school times. But actually, her academic score is always been well since childhood in school. So, like when she went for consultation with the psychiatrists and psychologists, this dilemma came a lot during the process of consultations, that you have a good academic score, so it might be possible that it's not ADHD and it might be something else. So it took her a very long time to get properly diagnosed, and at the end it turned out to be inattentive ADHD. So, ma'am, how can we resolve this kind of dilemma thing, and what are some strategies that she can use as an adult to cope up with the stress that is created due to, ADHD that has gone from childhood to adult ADHD? That's true. So he is diagnosed with ADHD. Yes, So he's on medication right now. ma'am, right now he's on atomoxetine that was started with psychiatrist, but he's not on CBT right now. Okay, for ADHD, he has to go first for physical activity, then mental games, so that he can enhance concentration. There is a game that you have to give him 100 digit की आपने उसे बोला 10 digit है, इन 100 डिजिट में से एवरी 7 को माइनस करो, तो आपको कुछ इस तरह के मेंटल गेम्स देने पड़ेंगे, और उसमें पेशेंस डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि एडीएचडी एक जगह नहीं बैठता है, उसमें बहुत एनर्जी होती है. तो एनर्जी चैनलाइजेशन इज फर्स्ट थिंग. सेकेंड इज बी हाइड्रेटेड, उसको 2.5 लीटर पानी पीना है. थर्ड, उसको मेंटल एक्सरसाइजेस करनी होगी फॉर टू इनहेंस कंसंट्रेशन एंड अटेंशन. फोर्थ, उसको काउंसलिंग या सीबीटी लेनी होगी. फिफ्थ, उसमें पेशेंस डेवलप कराना होगा, क्योंकि उनमें पेशेंस नहीं होता है, तो उसका जो इंटरेस्ट एरिया है वहां से हम स्टार्ट करेंगे कि वो पेशेंस डेवलप कर पाए. जो उसका इंटरेस्ट एरिया है उसको हमें फाइंड आउट करना होगा, और वहां से हम उसमें पेशेंस डेवलप करेंगे. तो ये 5 चीजें एडीएचडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर एडीएचडी बहुत सीवियर है तो थोड़े दिन मेडिकेशन पे रह सकता है. Okay, thank you very much. यू वेलकम बेटा. Next question, Lakshya. हेलो मैम. Hello, काफी इंफॉर्मेटिव सेशन था, काफी अच्छा लगा सुन के. काफी आपने प्रैक्टिकल बातें ही बताई है, जो कि हम रिलेट भी काफी कर पा रहे थे उन सभी बातों से. तो सेशन काफी अच्छा लगा. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. हाँ, एक बस क्वेश्चन तो मैं नहीं कहूंगा, बट जनरली वैसी सलाह लेनी है. जैसे मेरा पार्टनर है जैसे, तो उसमें एंगर इश्यूज थोड़े ज्यादा है. मेरे काफी पेशेंस वाला है, और जो मेरा पार्टनर है उसमें काफी एंगर इश्यूज है. तो मैं उसको काफी समझाता भी हूँ कि थोड़ा सा जैसे स्लो चीजें को ले. उसको ये चीज चाहिए होती है कि जो चीज मैंने बोल दिया वो उसी टाइम तुरंत हो जाए, और नहीं होती है तो फिर वो तुरंत ही एकदम से गुस्सा स्टार्ट हो जाता है उसका. तो इस चीज को कैसे टैकल किया जा सकता है? ये गुस्सा कब से स्टार्ट हो रहा है? कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है, या फैमिली में कोई जेनेटिक, उसके पेरेंट्स को भी गुस्सा आता था, या कोई ट्रॉमा हुआ था उसके बाद से हो रहा है? ट्रिगरिंग फैक्टर क्या है? ट्रिगरिंग फैक्टर शायद उसका जो एक ब्रेकअप था लास्ट, वो काफी मुश्किल से उससे रिकवर कर पाई थी. तो वो उसका 1 साल पहले वाला है. अच्छा, 1 साल पहले उसका ब्रेकअप हुआ था, तो वो ओवरकम काफी लेट कर पाई थी उसको, इसलिए उसको गुस्सा आता है. तो जब उसको बोलिए कि वो हर सिचुएशन में रिएक्ट करती है ना, आप उसको बोलो कि प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि एक हैबिट फॉर्मेशन में 21 डेज मिनिमम और 66 डेज मैक्सिमम लगते हैं. तो उसको एक हैबिट फॉर्म करना पड़ेगा कि जब भी कोई उससे बात करता है तो इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग वो एक पॉज ले और 1 से 20 तक काउंट करे, उसके बाद वो रिस्पॉन्ड करे. तो देखो, जब हम रिएक्ट करते हैं तो हम कुछ भी गाली दे सकते हैं, हम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन अगर हम एक पॉज लेते हैं और हम 1 से 20 तक काउंट करने की प्रैक्टिस करते हैं, तो जो तब हमारा जो रिस्पॉन्डिंग होता है वो थोड़ा कूल एंड काम होता है. इसकी उसको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी एंगर इश्यूज के लिए. और जब उसको जिस चीज से ट्रिगर होता है, जब कोई किस तरह की बात करता है, ऐसा तो नहीं वो नेचर में डोमिनेटिंग हो, या उसको उसकी पर्सनालिटी ओसीडी ओसीपीडी पर्सनालिटी है कि वो मतलब ऑथोरिटेटिव है, वो सबको अपने हिसाब से चलाती है.
अब उसकी पर्सनालिटी पैटर्न पे थोड़ा अब तुम फोकस करके बताना, और उसके ये बाद भी तुम है, हम्म ये वाली पर्सनालिटी भी है, अथॉरिटेटिव वाली है उसकी। हाँ, तो जो अथॉरिटेटिव है ना उसकी पर्सनालिटी, ओके। तो उसे बहुत परफेक्शन चाहिए, और उसको चाहिए कि आप लोग उसके कंट्रोल, मतलब जो वो कहे वो मानो, राइट राइट बिल्कुल। है ना। वो आपकी बात नहीं मानेगी, वो अपने या तो फैमिली में एल्डेस्ट चाइल्ड हो सकती है, क्योंकि जो एल्डेस्ट होते हैं वो थोड़े अथॉरिटेटिव होते हैं, या वो बिल्कुल यंगेस्ट हो सकती है, क्योंकि वो लोग थोड़े स्पॉइल्ड चाइल्ड होते हैं। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि जब भी वो रिस्पॉन्ड करे तो आपको बोलना पड़ेगा कि एक गहरी लंबी सांस लो, उसे रोको और 20 तक काउंट्स करो। और उसके अलावा आप उसको ये वाली बात समझा सकते हो कि देखो तुम्हारा पर्सनालिटी डोमिनेटिंग टाइप का है, परफेक्शनिस्ट हो तुम, तो सारे लोग तो तुम्हें फॉलो नहीं करेंगे ना। मतलब आप बहुत प्यार से उसको समझा सकते हो, काउंसलिंग कर सकते हो कि हर कोई तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा, तुम हर एक के हिसाब से नहीं चल सकती हो। तो तुम ये कोशिश छोड़ दो, उसका जो एक्सपेक्टेशन है ना कि हर कोई फॉलो करे, उससे ना एडजस्टमेंट इश्यूज आएंगे बहुत ज्यादा। तो आपको बहुत प्यार से काउंसलिंग कराना पड़ेगा, उसकी काउंसलिंग करनी पड़ेगी, और उसके अलावा आपको ये बोलना पड़ेगा कि अपने रिएक्शन को एक तो रिस्पॉन्डिंग में चेंज करे, और दूसरा ना पोस्टपोन करे। जो भी उसको बोलना है, चिल्लाना है, उसको पोस्टपोन करने वाली आदत डाले कि मैं 5 मिनट बाद गाली दूंगी, मैं 5 मिनट बाद चिल्लाऊंगी। तो जब हम पोस्टपोन करते ना, तो हमारा उतना ज्यादा जो पार में उस टाइम वो थॉट रहता है, इमोशंस रहता है, वो इमोशंस धीरे धीरे डाउन होता है। क्योंकि इमोशंस तो इमोशंस ही है ना। जब देखो, फीलिंग, इमोशंस और बिहेवियर आपस में रिलेटेड है। अगर आपके थॉट नेगेटिव है तो आपकी फीलिंग सैड होगी और आपका बिहेवियर बहुत वियर्ड होगा। अगर आपके थॉट पॉजिटिव है तो आपकी फीलिंग बहुत अच्छी होगी और बिहेवियर आपका बहुत कूल एंड काम होगा। तो आपको ना एक बार थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि उसका जो 1 साल पहले भी क्या उसका पर्सनालिटी पैटर्न डोमिनेटिंग था, या वो उसका जो बॉयफ्रेंड था या जिससे भी ब्रेकअप हुआ है, या उसने उसको इतना डोमिनेट किया कि वो उसका रिएक्शन है। थोड़ा सा पास्ट में चले जाओ और थोड़ा सा ये देखो कि 1 साल पहले ये कैसी थी। अगर 1 साल पहले भी उसका पर्सनालिटी पैटर्न ऐसा था तो उसकी तो पर्सनालिटी इश्यूज हैं उसको। हो सकता है मम्मी पापा में से कोई एक ऐसा हो तो ज्यादा जेनेटिक उसमें आया हो, वो जीन्स आए हो। और तो उसको 2-3 चीजों पे काम करना पड़ेगा। एक तो रिएक्ट नहीं करना पड़ेगा, दूसरा पोस्टपोन करना पड़ेगा अपना जो भी सेइंग या अपना स्टेटमेंट है, तीसरा उसकी काउंसलिंग करनी पड़ेगी कि मतलब इतनी रिजिडिटी ठीक नहीं है, तो उसकी काउंसलिंग REBT तो नहीं, रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, उसकी REBT होगी रादर देन CBT। क्योंकि REBT उनकी होती है जो लोग थोड़े स्टबन, जो रिजिड होते हैं, तो वहां पे उनको उनका जो अप्रोच है उसको थोड़ा फ्लेक्सिबल किया जाता है, तो वो उसकी करवानी पड़ेगी। बाकी उसका वाटर इनटेक बढ़ाओ जिससे थोड़ा कूल रहे। उसको ना डायरेक्ट कुछ मत बोलो, उसको इनडायरेक्टली समझाओ कि अगर कोई एक इंसान ऐसा करता है तो दूसरा कैसा करेगा। मतलब समझ रहे हो ना, इनडायरेक्ट काउंसलिंग। डायरेक्ट में तो आपके खुद के रिलेशंस खराब हो जाएंगे। यस सर। तो ये थोड़ा सा आइडिया ले लो कि 1 साल पहले कैसी थी, फैमिली में कोई इस तरह का है कि नहीं, वो एल्डेस्ट है कि यंगेस्ट है। तो थोड़ा इन चीजों पे काम करोगे तो सॉल्यूशन तो दुनिया में हर चीज का है। जब से प्रॉब्लम बनी तभी से सॉल्यूशन बने, पर दिक्कत पता है क्या है कि हम प्रॉब्लम को फोकस करते हैं, हम कभी सॉल्यूशन पे जाते ही नहीं, तो प्रॉब्लम बढ़ते बढ़ते बहुत हो जाती है। जैसे लोग कहते हैं ना, उसने हमें स्ट्रेस दिया। अरे स्ट्रेस कोई देता थोड़ी ना है भाई, तुम खुद ले ही मत। यस सर, थैंक यू मैम। वेलकम। कोई Thank और you. कुछ पूछना Thank चाहेगा? you. Shivam, हाँ, यस मैम। please. मैम, मेरा क्वेश्चन था, जैसे कि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो घर को छोड़ के जब कॉलेजेस के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे ऐसा होता है कि वो लोग सब्सटेंस यूज में फंस जाते हैं, और अगर वो निकलना भी चाहते हैं तो मोस्टली उनके पे वो पीयर प्रेशर होता है कि वो सोसाइटी से एक्सक्लूडेड फील करते हैं। बट वो धीरे धीरे उनके मेंटली काफी उनको हार्म पहुंचाने लगता है। तो उसमें उनका क्या मेंटालिटी होना चाहिए, क्या उनका खुद से ऐसा होना चाहिए जिससे वो इस चीजों से छोड़ के वो आगे निकल पाए ओवर द सब्सटेंस अब्यूज? देखो, जब बच्चे स्कूल से कॉलेजेस में जाते हैं तो दोस्त यार बोलते ही हैं, जैसे वेप का सिस्टम वो फैशन चला, अबे ले ले यार वेप ले ले, अबे यार एक जॉइंट पी ले। अगर वो ना पिए तो उनको लगता है ये लोग जज करेंगे कि मैं बैकवर्ड हूँ।
अगर वो जॉइंट ले लें तो उनकी हैबिट हो जाती है। तो इस ट्रैप से निकालने के लिए सबसे पहले तो पेरेंटिंग इतनी ओपन होनी चाहिए कि वो बच्चा घर पे जाके बता सके। तो यहाँ पे पेरेंटिंग का बहुत बड़ा रोल है। अगर जैसे मेरी डॉटर है, सपोज मेरी डॉटर इतनी ओपन है कि अगर वो वेप लेगी, उसकी फ्रेंड्स लेती है, मैंने पूछा बेटा आप भी ले लो, आपने लिया होगा, तो उसने कहा मम्मा मैंने टेस्ट किया था पर मुझे मजा नहीं आया। तो अगर पेरेंट्स इतने ओपन है तो बच्चे सब शेयर करेंगे। तो बच्चों को पेरेंट्स जब शेयर करेंगे, जब बच्चों को हमें पता ही नहीं कि कहाँ ट्रैप हो गया, तो हम कैसे हेल्प करेंगे? तो पेरेंट्स को इतना ओपन होना चाहिए कि वो बच्चे हर बात शेयर कर पाए। और जब उन्हें लगे कि बच्चा ठीक है, एक बार ले लिया, दो बार ले लिया, पर उन्हें लगे कि ट्रैप में आ रहे हो, तो उसको किसी तरह से और फ्रेंड्स की तरफ या और एक्टिविटीज की तरह इन्वॉल्व कर देना चाहिए। तो यहाँ पे पेरेंट्स का रोल ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वो तो अपने दोस्त से शेयर करेगा तो दोस्त भी सारे ले रहे हैं। तो कॉलेज में एक फैशन, एक ट्रेंड है ना कि अबे तू कहाँ से आया है, तुझे इतना नहीं पता, अबे एक वीट तो ले। अब मेरे तो कितने सारे ड्रग एडिक्ट बच्चे आते हैं मेरे पेशेंट, तो कितने लोगों ने ओवरकम किया। उसने एक ने तो इसमें डाला भी है, इंस्टा या यूट्यूब में से किसी में डाला है कि मैं पहले ड्रग लेता था, मैं स्पिरिचुअल लाइफ देखना चाहता था, फिर मैंने ड्रग से निकल गया। उससे जो लोग ओवरकम करते हैं वो लिखते हैं। उसके अलावा हमें बच्चों का एक कंट्रोल ऑफ इमोशंस वो इतना स्ट्रॉन्ग करना चाहिए शुरू से ही, जब से हम बच्चों को बड़ा करते हैं पेरेंटिंग के टाइम। या बच्चों को अपने फ्रेंड्स हर तरह के बनाने चाहिए, जो ऐसे भी बनाने चाहिए जो उनको समझा सके कि अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाए। पेरेंट का बहुत बड़ा रोल है इसमें, जहां तक मैं समझती हूँ। पेरेंट फ्री है तो बच्चा फ्री है। I think Rohan has a question. Thank Uh, Rohan. Thank you for that answer, ma'am. Ma'am, in continuation with the last question, जैसे स्कूल से कॉलेज में जाने वाली बात थी, रिगार्डिंग ADHD ही है ये क्वेश्चन कि जो मेरा वो दोस्त है, ही हैड अ मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग स्कूल टाइम। मतलब उसकी जो साइकोलॉजिस्ट से बात हुई थी पहले, तो दे टोल्ड हिम कि स्कूल के टाइम पे उसका ना एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर था कि मतलब जो पेरेंट्स ने बोला वही करना है, जो टीचर्स ने बोला, लाइक एवरीथिंग वाज एक्सटर्नली सेट अप फॉर हिम. But now in college, that external structure, breaks down a little bit because you're given more freedom, you're given more, like free ability to do things basically. So, उसके जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है क्या? yes, ma'am. Like father is very strict, mother is okay, but like still strict. अच्छा अच्छा, तो कॉलेज में जाके फिर वो अपने तो मैम हाँ, इशू ये आया कि स्कूल के टाइम पे सिंस जो एक्सटर्नल स्कैफोल्डिंग पूरा था, तो उनका जो एकेडमिक लाइफ है, नॉर्मल यूजुअल लाइफ, एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन. But during college, they are not able to cope up with a lot of things like social life and studies also. So they broke down in college. So how can they maintain this scaffolding without having a proper external structure? Because college wouldn't provide such an external structure, right? So how can they manage that? How can he manage with the subjects or he manage with the friends? Both. Like he is suffering in the whole because I'm the kind of only friend he has. So he always tells me कि बाकी क्योंकि मैं उसको बचपन से जानता हूँ. So इसका if he wants to make a girlfriend, if he wants to make more friends, socialize करने में and basically he doesn't interact with a lot of other people also and पढ़ाई में भी उसका like decline आ गया था बीच में काफी. So he's not able to manage anything right now. मतलब उसका since ADHD वाला scene है तो he takes up a lot of tasks, like he does a lot of things, like he does organizational stuff and college stuff and वो कुछ ज्यादा ही मतलब टॉक भी एक्सेसिवली कर रहा होगा और मतलब जरूरत से ज्यादा लोगों की एक्टिविटी में भी तो बहुत इंटरफेयर करते हैं ये लोग. हाँ जी मैम. But he's not able to cope up with life in general. So how should he manage that? कोप अप करने के लिए हम क्या कर सकते हैं उसको? हम उसको बिहेवियर मॉडिफिकेशन की ट्रेनिंग दे सकते हैं उसको. ड्रग थेरेपी भी वैसे इसमें काम आती है. हम हाइपर एक्टिविटी कंट्रोल करने के लिए माइल्ड ड्रग्स भी दे सकते हैं उसको. और हम देखो हाइपर एक्टिविटी कंट्रोल करने के लिए अगर हम ड्रग न भी दें
तो भी हम उससे कह सकते हैं कि जो फास्ट फूड है वो खाना कम कर सकता है वो। उसमें थोड़ा सा ये ट्रेनिंग दे सकते हैं कि थिंक बिफोर एक्ट और स्पीक। ये ट्रेनिंग हम दे सकते हैं कि थिंक बिफोर एक्ट और स्पीच, क्योंकि वो तो कभी भी कुछ बोल सकता है, वो तो वेट नहीं करेगा, बिना सोचे समझे बोल देगा, बिना सोचे समझे कोई भी एक्टिविटी कर देगा, क्योंकि पेशेंस लेवल तो होता ही नहीं है। तो जनरली हम ADHD वाले जो बच्चे आते हैं उनको एक तो बिहेवियर मॉडिफिकेशन करते हैं, और अगर हमें लगता है ये बहुत ज्यादा है तो हम थोड़े दिन के लिए ड्रग थेरेपी, मतलब साइकेट्रिस्ट को बोल देते हैं कि कुछ दिन के लिए आप मेडिसिन दे दो जिससे हाइपर एक्टिविटी थोड़ी कंट्रोल हो जाए, और इस तरह का मैनेजमेंट कर पाते हैं। मतलब उसको तुम यही कर सकते हो, बिहेवियर मॉडिफिकेशन या सपोर्टिव साइकोथेरेपी उसको कह सकते हो, काउंसलिंग भी कह सकते हो उसको, काउंसलिंग के लिए भी बोल सकते हो उसको, क्योंकि रीजन वही है ना कि जब वो छोटा था ना, तो अगर हम उसके पेरेंट्स की काउंसलिंग करते, होता है ना अर्ली डायग्नोसिस जो होता है ना, तो अर्ली इंटरवेंशन हम स्टार्ट करते हैं तो हम ज्यादा अच्छे रिजल्ट पाते हैं। अब वो एडल्ट हो गया तो अब थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, या तो उसको इस तरह के गेम की प्रैक्टिस कराओ जहाँ पे स्टिल बैठ के, जैसे चेस हो गया, जहाँ पे एक जगह बैठ के वो खेल पाए। उसकी क्या हॉबीज हैं, तुम्हारी फ्रेंड की हॉबीज क्या है? मैम वो पहले आर्ट वगैरह करता था, लाइक ड्राइंग एंड ऑल, बट ही हैज नॉट डन दैट सिंस 2 to 3 years नाउ। अभी वो अल्कोहल लेता तो नहीं, अल्कोहल इंटेक तो नहीं है? नहीं नहीं मैम, नो ड्रग और अल्कोहल हिस्ट्री। ओके, ये तो बहुत अच्छी बात है, वरना उसकी हाइपर एक्टिविटी और ज्यादा बढ़ जाती। तो उसको यही बोलो कि ये 21 डेज ये प्रैक्टिस करे कि बिफोर डूइंग एनी एक्ट, बिफोर सेइंग एनी स्टेटमेंट, वो थोड़ा सा वेट करे, सोचे, तब बोले। 21 डेज की तो बात है, 22nd डेज तो वो हैबिट फॉर्मेशन हो जाता है, ये कर सकते हो। और अब एडल्ट हो गया है ना, दिक्कत तो ये है ना एडल्ट में, और हम क्या कर सकते हैं? उससे बोलो जर्नलिंग कर, ये कहाँ से ट्रिगर हुआ है। अब तो ये तो हम तब से देखते हैं जब उसकी मदर प्रेग्नेंट थी, तब से हम निकालते हैं ना कि क्योंकि उसकी मम्मा का BP हाई था, या वो मतलब हम देखते हैं ना ADHD बच्चा क्यों पैदा हुआ, हम तो वहां से जाते हैं क्या बोलते हैं उसको, प्री प्रेगनेंसी जो उसकी मदर की थी वो स्टेट। तो अब ये कब से था, क्या था, पेरेंट्स भी अगर ऐसे हैं तो मुश्किल है ठीक होना, अगर जेनेटिक डिस्पोजिशन है तो। एक बार तुम ऐसा करना, स्नेहा से मेरा पर्सनल नंबर लेके ना उसके सारे डिटेल भेजना, और उसके वीडियो बना के, तो मैं शायद तुम्हें सजेस्ट कर पाऊंगी, श्योर मैम, श्योर है ना। उसके वीडियो और उसके ऑडियो भेजना, तो मैं फिर तुम्हें सजेस्ट कर पाऊंगी सब देख के कि क्या सब कुछ बताना, फैमिली हिस्ट्री बताना, पास्ट हिस्ट्री बताना, पर्सनल हिस्ट्री बताना, ये सब बताओगे तो मेरे लिए इजी रहेगा जानना। श्योर श्योर मैम, थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम। Thank you, Rohan. Any other questions? No. I think we are now to the end of the session. Thank you, Pratibha ma'am. Thank you, आपने इतना time दिया. To sum up, Pratibha ma'am ने जहाँ problems और issues के बारे में, stress, anxiety, fear of rejection, depression को बहुत clarity से explain किया. Issues of social isolation, जहाँ 17% adult अभी भी सेल्फ हार्म के प्रति आगे बढ़ रहे हैं, वही उन्होंने स्ट्रैटेजीज के बारे में भी बात की, स्टिग्मा को कैसे अवॉइड किया जा सकता है, सोशल अवेयरनेस किया जा सकता है, प्री स्कूल के टाइम से ही ट्रेनिंग किया जा सकता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम, सोशल ग्रुप्स, और एक एक स्टूडेंट्स को, इंटर्न्स को इतना टाइम दिया, इतने क्लैरिटी के साथ समझाया. थैंक यू सो मच मैम, इट वाज एन ऑनर हैविंग यू. And with seeking your blessings, we move ahead with Sarva Arogya program. Thank you so much, ma'am. Thank you. Aapne time diya. You are welcome. Welcome. Thank you, everyone. I hope you all enjoyed the session. And Rohan, I will give you ma'am's number so that the problem is resolved. Okay. Thank you all. Sure, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you.